देखिए जेएनयू के एक टीचर के द्वारा, एक प्रोफेसर यहाँ पर जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है उनकी जो कलीग के द्वारा एक पर्टिकुलर लाइन को लेकर जो उनको पर्सनल टारगेट किया जा रहा है, उनके बारे ये यहाँ बात कर रहे हैं। और वो बिल्कुल जो है हंगर स्ट्राइक पर है। आप देख सकते हैं किस तरह वो जो है बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं जिसको लेकर आज वो ऐसे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आगे उन्होंने क्या कुछ करने का सोचा है। मेरा नाम क्रिस्तु दास है। जेएनयू में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ एंड जेएनयू का स्टूडेंट भी था। इधर से तो पीएचडी किया है। फिर कल रात से आप लोग यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं, जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? एक कुछ दिन को पहले कुछ स्टूडेंट्स यूनियन का इश्यू था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक कमेटी बन गया था। उसमें कुछ स्टूडेंट्स का ऊपर आरोप था वैंडलाइज करने का, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन रस्टिकेट किया। रस्टिकेशन के बाद स्टूडेंट यूनियन कॉल्ड फॉर टोटल बंद। टोटल बंद ठीक है, बट मेथड क्या है उनका बंद में? क्लासरूम पूरा बंद करना है, स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट करना है, फैकल्टी को डराना है, सिक्योरिटी गार्ड्स को इंटिमिडेट करना है। ये मेरा सहमत नहीं है इसी मेथड ऑफ प्रोटेस्ट में। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई ऑल्सो डू पॉलिटिक्स, but I am a Gandhian, I am a Nehruvian. I believe in Swami Vivekananda's idea of India. I also believe in Dr. B.R. Ambedkar's idea of youth. इसीलिए मैं सोचा था एटलीस्ट यहाँ बैठ के दो क्वेश्चन पूछूंगा जेएनयू स्टूडेंट यूनियन को और जेएनयू टीचर एसोसिएशन। ठीक है, मान लीजिएगा जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन रस्टिकेट किया है, अभी बार बार मना कर रहा है रस्टिकेशन का रिमूव करने के लिए। आपका क्या ऑप्शन लेफ्ट है? वी हैव जुडिशियरी। जुडिशियरी तो है, जुडिशियरी का जाने के लिए आपका तकलीफ क्या है? ये मेरा सवाल है। जुडिशियरी जाओ, एड्रेस करो, आपका सवाल पूछो। I have a doubt they will not go because there is a strong evidence. I call it in English willful vandalization of a public property. It's properly planned, meticulously orchestrated. This is my first issue. The second issue, my colleague Santishri Dhulipudi Pandit, she teaches here, she was a student, she is an intellectual. Normally, we make certain times casual remarks about caste, culture, politics, identity. And she also may have made some statements about, Dalit uh, and the black issue. And ये teachers, some teachers, all teachers नहीं है, some students कुछ शब्दों को निकाल के कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, जेएनयू हमेशा इंटेलेक्चुअल कल्चर का प्लेस है। आप डिबेट करो, डिस्कस करो, डिसेंट करो, डेमोक्रेसी के ऊपर बात करो। Nobody is perfect. I may have used certain words which may be discomfortable to you. That doesn't mean that आपका A, B, C, D शब्द यूज करके गाली देना। That is not intellectual culture. You counter her intellectually. You ask questions. My simple request to JNU Students Union and JNU Teachers Association, please call Santishri Dhulipudi Pandit for a public debate on what she said. I will also be there as part of a discussion. Let us debate, discuss, dialogue, and agree to disagree. But it is not the culture of the JNU, which is intellectual in nature, to defame, use foul language, and characterize some person with all kinds of Like you want things. the allegation was like
VC. She is a VC of this college. I don't speak her as a VC. I identify her as my colleague, Colleague. the fellow traveler, a co-traveler in the pursuit of knowledge. Let me put it this way. Right? Of course, officially she is VC, but more than VC, she is my colleague. Colleague, correct. This can happen to Santi Shri Dhulipudi So you Pandit want- today. Tomorrow may be Christu Das, and the third day could be someone else. Exactly. Character assassination. There may be shabd we use, but picking up 2, 3 vocabularies and characterizing a particular individual is, which I would call, un-JNU. So you want a public discussion on the Yes. particular statement Yes. given by her, I want- and a I- peaceful environment in Yes, JNU. yes, Because I this is want- not JNU known for. Absolutely, you got it. I want the entire JNU community to call JNU professor, my colleague Santi Shri Dhulipudi Pandit, for an open talk, discussion. Let us debate it intellectually, So but what- let us not tarnish an individual because of she had used, which may not be intentional, which may be casual. How do you differentiate the statements which are made intentionally and casually? सर आपका अगला कदम क्या होगा इस पर? I am looking for an interaction with JNU SU and JNU TA, Teachers Association, for a possible interaction. I am challenging them, either go to court, please don't create any discomfort in the campus, which they should understand now. Second, they should have the courage to invite Shanti Sri Dhulipudi Pandit for open intellectual discussion of what she has said. Yes, that is what my question. देखिए अभी आपने सुना किस तरह प्रोफेसर ने बताया कि जैसे एक लाइन वीसी के द्वारा जो एक लाइन बोली गई थी उसको लेकर लोगों ने पर्सनल टारगेट करे। इनका ये कहना है कि जेएनयू का जो कैंपस है वो इंटेलेक्चुअल बातों के लिए, इंटेलेक्चुअल चीज़ों के लिए जाना जाता है, ना कि इंटेलेक्चुअल चीज़ों का, ताकि ऐसे केओस मेंटेन किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी जो यहाँ पर कल इतना बड़ा जो छात्रों का आक्रोश फूटा था, जो पुलिस कर्मियों के साथ उनकी अनबन हुई थी, उसके जगह अगर जुडिशियरी के पास जाते या फिर अगर बैठ के बात की जाती, इस बात को लेकर एक पब्लिक डिस्कशन रखा जाता, तो शायद जो है ये जो इतनी बात हो रही है, इतनी जो चीज़ें हुई, जो इतने स्टूडेंट अरेस्ट हुए, ये नहीं होता। कई स्टूडेंट्स को जो है रेस्टिकेट कर दिया गया। ये यहाँ पर आज प्रदर्शन पे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा जब तक जो है जेएनयू एसयू के जो हेड है वो बातचीत नहीं कर लेते। जो इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जेएनयू इतनी बड़ी संस्था के ऊपर बात आ रही है कि जेएनयू इतना बड़ा जो संस्था है वहाँ की जो है नींव को कहीं ना कहीं हिलाने की कोशिश की जा रही है। जेएनयू जाना जाता है अपने पब्लिक ओपिनियन के लिए, डिस्कशंस के लिए, डिबेट्स के लिए, और यहाँ पर वही चीज़ों को हटाकर जो है कहीं ना कहीं सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन को ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। यहाँ पर जो है बिल्कुल ये अपना भूख प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। और उसके बाद आपने इनकी पूरी राय सुनी कि इनका क्या कुछ कहना है। इनका बस इतना कहना है कि स्टूडेंट्स को जो है भटकाया ना जाए। बहुत बच्चों का सपना होता है जेएनयू कॉलेज, ये जेएनयू यूनिवर्सिटी जो है बहुत बच्चों का सपना है, और लोग जो है गलत बच्चों से अगर इन्फ्लुएंस होगा तो कहीं ना कहीं देश के भविष्य पर जो है बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल आपने पूरी खबर देखी, पूरी खबर देखने पर आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। स्टूडेंट्स को लेके, इन प्रोफेसर्स की बात सुनने के बाद आपको जो भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। आप देख रहे हैं NN24 न्यूज़, मैं खुशी दिल्ली से।